Hello everyone, close to the prelims, so I hope I keep this short and actually give you an advantage after the results come in for the prelims. You can actually use ChatGPT which in its essence, from my point of view, is a word predictor at best, which has been technologically refined from time to time, rather than someone you can talk to. And even with generic statements, it can give you the results you need to succeed. So moving forward, first we'll understand why the queries that we ask usually at like ChatGPT, why are they suboptimal? Like, firstly, if we are asking the weather or something, or like how many states are there, or a very basic static fact, then ChatGPT can always use its large corpus of data and give you a very proper answer, which is factually correct. But UPSC is just not about, especially mains, it's just not about facts and data and correct statements. It is about opinions. It's about analysis. It's about criticism of a particular scheme. It is about an initiative. It is full breakdown of a international event that is happening, and that is within the sea of opinions that is the internet. The chat gpt confuses itself and can give you a lot of wrong answers. Like, for example, if we say that if we are generally using ChatGPT and we feed a previous year question and ask to generate an answer, then the problem is, firstly, you need to understand that ChatGPT has not taken many attempts. He or she does not know there needs to be an intro, a particular format of point wise answering, examples to support your particular point. Maybe if it is a way forward looking question, then it needs suggestions. Maybe it does not know that UPSC usually appreciates that when you mention SDGs in your conclusion, you are rewarded higher than your fellow competitors. So, firstly, just feeding a PYQ, this is this year's PYQ, give me a UPSC answer, will never give you the proper revision material or answer that you seek to improve your answer writing. Secondly, if you feed your own answer and ask ChatGPT to review it, you must have noticed sometimes you are getting 8 out of 10, 9 out of 10. The thing is that uh, even for humans, how UPSC scores in mains is a mystery. So to expect a newly entered artificial intelligence agent to predict how UPSC scores is a big ask. So rather than that, why not compare your answers or ask ChatGPT to answer in a fixed format after you write an answer, to make sure that you can compare that, oh, what all you could have written. Because even through all the mocks and everything, the marks I'm scoring was not the question, but how I can make even 1 point better to score zero point 0.5 marks extra in one question is what helped me get through. So it is 120 questions across 9 papers inherently, and zero point 0.5 marks or 1 mark edge over your fellow competitor is what gets you above that 800 marks score in mains, which pretty much ensures that you will be somewhere in the final list. Then, thirdly, if you give it a topic and ask it to prepare entire notes, you don't specify sources. What if it fetches up sources which are politically incorrect for an answer which is in governance, or a topic which is in international relation? Then making it your particular notes and forming a bad opinion or a wrong opinion, it really throws you off and derails your preparation. And time is a luxury that we all don't really we all don't afford. So to waste time by getting wrong information and wasting time on chat gpt is this is all a mistake, and we should particularly have a methodology to make sure that we use it as a tool and not as a companion or a source provider. Once you have reduced this particular technology, like all other technologies, as a tool, you make sure that you are expanding your arsenal of answers to make it sound better and look better. So coming to the three reasons why it damages your preparation. Firstly, as I mentioned, that UPSC's best practices and answer writing techniques is something that it cannot grasp, because no one has ever grasped what happens behind the doors of the commission is something that
one should not anticipate and should not even try to predict. It's something that you need to train yourself to and get to a mark where whichever answer you present is up to their standards immediately. Second, once you actually push ChatGPT or any other AI agent into a corner that I need an answer, it has been coded in the back end. If you open, I'm for all the tech people that are here, if you have the time to read open source code or even understand what's happening in their code, there is always a final statement where if a user is demanding a question, no matter what, it will try to just use its word predictor and form grammatically correct sentences that sounds correct but is actually wrong. So that's what we mean by confident hallucination. It's just an interrogation technique that you are imparting on the uh, AI agent, and just out of pressure, it is giving you a wrong answer. And one wrong fact is 10 times worse than three less points in a mains answer. So make sure that you avoid wrong facts all the time. Maybe you finish one answer you leave half a page in an answer. That will cost you less than quoting wrong facts, that too confidently. And then there is an algorithmic bias. This is something that we study all the time about AI. Ki since this is predominantly a humanities based exam, there are a lot of opinions which can never be fully correct and can never be fully wrong. And some of the examples are like the Northeast, the agrarian reforms. There are always advantages and disadvantages in every single topic you can think of in the UPSC mains syllabus. Even in history, if they always say ki history, why was Battle of Panipat fought in Panipat was one of the famous questions that was discussed for ages in the UPSC circle. This is not a factual thing and it is purely analysis, and there can never be a full and complete accurate analysis of this question. To expect something that has been just trained on a bunch of words organized correctly here and there and expect that your preparation has been done will be a wrong notion to have. So if you somehow overcome all this and then you make sure that you verify each and every source and go through every point, click on every hyperlink that it provides in a particular answer, then it's better to make sure you go online and type that particular thing and read one or two articles. That will be much quicker than going through every PIB article, every news article from the Hindu, Indian Express, even Reuters, because to know everything about a topic, I'm pretty sure that everyone has went down this rabbit hole where they have researched a topic for a day or two and it is just 1% of the syllabus. तो वी शुड नॉट डू दिस. हम लोग को ये नहीं करना है कि हम लोग एक ही टॉप या तो हम लोग लिंक क्लिक क्लिक करके हर चीज को करें. वी शुड अवॉइड दैट एज वेल. तो इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सिंपल एक तरीका यूज किया था मैंने. I made sure that I had the micro themes that was divided syllabus wise, keyword wise. Then I had various notes of my own, X Factor notes, and all the government issued documents, economic survey, budget, various key ministries' annual report, NDMA guidelines, which I'll take you through after this. So the next part will be how I use this, and I made sure that I use it as a tool so that it only refers to what I know. I know my notes. I have gone through, like, even on a surface level through X Factor notes, or even on a surface level, the economic survey snapshot or the budget snapshot. So I know what that document contains, and I should play only to my sources. The golden rule that every particular topper and ranker always emphasizes on is that limit your sources. And ChatGPT is literally the contrary. You cannot limit your sources if you just let ChatGPT run in an open field. And just a disclaimer, I use ChatGPT, but if you're using any other AI agent, just make sure that you apply the same principles. So to do that, I'll go ahead with the demo. This is like, I have created this particular project file just half an hour ago before this session. This is my prep work for everyone. So here you click the new project
and just name whatever you want. This is mains demo, but I recommend subject wise GS1, GS2, GS3, GS4, create all projects. And this is the free version. This is not a paid version. I have never used paid for an AI subscription till date. Now, I'll be going through and demonstrating GS3 answers for now, because I feel the value addition is something that troubles a lot and everyone in GS3. And this is how I have made sure that every one of my point has some value addition which is relevant. यहाँ पर now you have chats and sources में जाके मैंने बस अभी के लिए इकोनॉमी के एक्स फैक्टर नोट्स एंड इकोनॉमिक सर्वे डाल दिया है. यहाँ पर आप बजट, अगर आपके हैंड रिटन नोट्स हैं उसको स्कैन करा के भी डाल दो. दिस हैज द एबिलिटी टू रीड योर हैंड राइटिंग. एंड जो जो पढ़ा हुआ है उसको डाल दो. नाउ कम्स दी प्रॉम्प्ट्स. यहाँ पर आप जितने चैट्स इसके साथ बनाओगे वो लिस्ट हो जाएंगे. मैंने अभी एक ही विंडो बनाई है एंड आई गो थ्रू इट फ्रॉम द बिगिनिंग. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉम्प्ट दैट आई हैव रिटन. It is go through the UPSC CSE mains GS3 syllabus dealing with Indian economy, agriculture, environment, science and technology, disaster management and internal security. मैंने इसके 5 ये जो जितने भी सब सब्जेक्ट्स हैं उसको मेंशन कर दिया है. Second is internalize this syllabus word by word and add this to your knowledge base for this conversation. We'll talk about this more, but right now I need everyone to focus on the words internalize this syllabus, this phrase, and knowledge base. These are you are basically creating a second brain in the form of in ChatGPT. So now this is like your extended part of the brain from your notes that will work for you. Now, based on that, identify keywords mentioned in the syllabus and create a map of those keywords against the subjects I have mentioned before. Now make sure you recall the importance of these keywords and its synonyms whenever I instruct you to answer a mains question going forward. So every topper and every topper's answer sheet that one goes through, which I have also done quite a bit, like 3-4 toppers, I have went through various answer sheets. They always, and even in their talks, they had mentioned ki use keywords, but keywords is something that agar kuch likha hua inclusive growth, to uske synonyms kya hai, you need to know that. Because sometimes that comes directly in the question. कभी कभी आता है कि उसको अगर आप आंसर में लिख दो तो उससे उसी को वैल्यू एडिशन बोलते हैं. कीवर्ड्स और उसको अंडरलाइन करना इज इंक्रीजिंग द रीडेबिलिटी ऑफ योर इवैल्यूएटर for your evaluator, as well as increasing the knowledge depth that you are displaying. और कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मैं कोई चीज एक सेंटेंस में लिख सकता हूँ, उसको अगर मैं एक वर्ड में कर दूं तो दैट सेव्स टाइम ड्यूरिंग मेंस. And time is of the essence in mains. If one sentence either another and आपका आधा क्वेश्चन एक क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा. तो मेक श्योर कि कीवर्ड्स पे फोकस करने के लिए, तो ये बहुत क्रूड लिस्ट है. इसको आप अगर बोलोगे आगे, जो मैंने नहीं किया है बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अब आपको कीवर्ड्स और चाहिए, आप बस बोलोगे कि एक्सपैंड ऑन द कीवर्ड्स एंड गिव मी 20 keywords for each point you have mentioned. वो सारे keywords relevant आपके देगा सोर्स से. अब मैंने सिंस सोर्स अपलोड किया हुआ है, इसने देखो सारे 6 सब्जेक्ट्स के keywords दे दिए. And it also always confirms कि what it will do. It's very important for everyone who is using an AI agent to make sure कि वो जो confirmation दे रहा है उसको देख ले. कभी कभी between the lines it says कि कभी कभी मैं use कर लूंगा internet, and that is where the hallucination starts. This is what you need to be vigilant of and make sure you stop it right in the tracks before it starts to proceed and tries to hallucinate. Now, this is the second instruction that I need you guys to focus on. Firstly, this is where I talked about कि internet पे rely करना for ChatGPT is wrong. मैंने sources आपको दिखाया मैंने क्या डाला है. अब पहला point है कि follow the following instructions without any deviation from now on. So you need to be a little harsh and say कि यहाँ से deviate नहीं होना चाहिए. This is your preference. कि you cannot allow that particular agent to make sure that it tries to defies you just to fulfill that particular only clause that is written in its source code, which says कि अगर तुम्हारे पास आंसर नहीं है तो कुछ ना कुछ फैब्रिकेट करके दे दो. ये उसका ट्रम्प कार्ड है. इसको अगर तुम लिखोगे तो वो बहुत लास्ट में जाके वो यूज करेगा जब फोर्स करोगे. उसकी नौबत कभी नहीं आती है कि आप उसको इतना फोर्स करो. फिर फर्स्ट है
refer only the sources I've uploaded in the project. They are X Factor notes and 2026 economic survey. This is repetitive, but for imagine as if you're teaching your second brain and your second brain is a child. So you need to be repetitive and very clear with your words and very simplistic. Fair. This should be added to your knowledge corpus. Again, I said knowledge base and knowledge corpus. So I'm again making it remember कि तुम्हारे पास एक ही लिमिट है, तुम्हारे पास इनफाइनाइट नॉलेज नहीं है दैट यू विच इज योर यूएसपी एज एन एआई एजेंट. So with your knowledge corpus, when answering the questions I ask going forward, उसके बाद second is for the questions and instructions I will move on with going forward. There is a with missing. Make sure you don't refer to any links, websites, or documents, etc. available on the internet. This is where we have made it realize that the knowledge corpus is everything that it can use. Otherwise, it is helpless. Then your primary knowledge base to answer my queries is only limited to the sources I add in the folder. As I mentioned, 2 points में मैंने एक ही चीज 3 बार repeat की है. This is how उसकी memory build होती है. Third, you have to make sure that at the end of every answer, you in a point-wise format enlist the materials you have used. Now, as I mentioned कि नीचे वाला पढ़ा करो, this is just for your clarity and your ease कि इसने क्या क्या सोर्स किया. जहां इसने इंटरनेट रेफर किया, एक ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी अंडरलाइन कि इसने इंटरनेट यूज किया है. Then you need to remind कि how have you used this particular link when I specifically asked to. So since there is a concept called reinforcement learning, AI always uses reinforcement learning. अगर ये गलती करता है तो उसको reinforce करो कि तुमने गलती की है, तो वो एक बार और करेगा, 2 बार और करेगा, तीसरे बार से वो करना बंद कर देगा. दिस इज द पेन यू हैव टू गो थ्रू टू मेक श्योर दैट यू हैव एक्यूरेट आंसर्स. तो उसको रीइंफोर्स करा करा के आप याद करवाओ. फिर लास्ट में है इन द फर्दर इंस्ट्रक्शंस व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन, नेवर मेंशन एक्स फैक्टर नोट्स एज अ सोर्स बिकॉज इट इज वेरी रूडिमेंट्री. अगर आप बोलोगे कि जैसे एग्जाम में बोलते हैं ना कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे लिख रहे हो तो उसके आगे, अगर डेटा लिख रहे हो तो उसके आगे इकोनॉमिक सर्वे लिखो, तो वो ये नहीं समझेगा. वो अपना सोर्स समझता है. वो लिखेगा कि 35% अर्बनाइजेशन है इंडिया में, ब्रैकेट में सोर्स लिख देगा एक्स फैक्टर नोट्स. यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस दैट इन दी एग्जाम. तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, सिंस ये एक बच्चा है, इसको बोला है कि बट व्हेन यू आर कोटिंग डेटा एंड स्टेटमेंट्स वेयर आस्क्ड फ्रॉम एक्स फैक्टर नोट्स, कोट द सोर्स रिटन इन द एक्स फैक्टर नोट इटसेल्फ. ये बच्चा है पर ये बहुत स्मार्ट बच्चा है, ये पूरा पढ़ के बैठ जाएगा एक्स फैक्टर नोट. तो उसके अंदर जो सोर्स है उसकी मैपिंग भी वो अपने ब्रेन में करके रेडी कर लेगा. अगेन इट हैज मेड श्योर दैट इट रिपीट्स माय इंस्ट्रक्शन. मैंने यहाँ पर कर लिया कि जैसे लास्ट पॉइंट का एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. आई विल नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन एक्स फैक्टर नोट्स एज अ सोर्स बट विल कोट द ओरिजिनल सोर्सेज cited within those notes whenever required. तो ये हो गया. Now this is the mother of all AI prompts, and this is the framework that I've used across subjects, across optionals, and across papers. GS 1 to 4 and optional 1 and 2 जितने PYQs मेरे से पॉसिबल थे, मैंने इस कोट में डाल के इसी से पढ़ के अपने नोट्स बनाए हैं. The last part of this webinar is where I showcase a part of my notes. They are all online. And I will also show you some unique aspects of those notes, which are not just stuck to this particular prompt, but what extra you can do once you have trained your model with your own source. So, pehla is, let's go through this particular prompt. Then we will make it answer a few previous year questions from the micro theme, and then the notes. So, now I have told, finally, follow the following instructions when I say answer the mains question. So this is the cue for this particular chat window कि whenever I say answer the mains question, तब इसको ये सारे instructions follow करने. Otherwise ये मेरे से normally converse ही करते रहेगा. Then first, if I specify it as a 10 marker in the prompt, answer in no more than 170 words. If it is a 15 marker question, answer in 280 words. So again, this is for your revision. If you revise 170 words, then you will be able to produce 150 words. Efficiency may vary and the number of things you can revise may vary. So feel free to change this number. For me, this number worked all the time for answering all the questions. तो ये नंबर अपने बल्कि नोट्स के हिसाब से कितने बल्कि चाहिए आप लोग यूज कर सकते हो. Then second, identify the subparts asked in this question.
If it is a 10 marker, then there should be 2 subparts, and there should be 3 subparts if it is a 15 marker. When you are not able to narrow down the number of specified subparts, then make sure you create the subparts as challenges or opportunities depending on the tone of the question. बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये लास्ट पार्ट काम आता है, वरना वो कंफ्यूज हो जाता है और वो बहुत गलत सब पार्ट्स बना देता है. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में वो सब पार्ट आइडेंटिफिकेशन कर लेगा. और हम लोग को हमेशा सिखाया गया है कि मेंस आंसर में कि क्वेश्चन के हिसाब से ही सब हेडिंग बनाओ. दैट इज इजी एंड टेल्स यू कन्वे योर मैसेज कि there are these many parts in this question, and in my answer through my subheadings I'm conveying कि मैंने सारे सब parts answer किए हैं. So that's the way you revise, that's the way you reproduce in the exam, and that's the way that it is easier for the examiner to check your answer. Then third, you need to give an intro. Now after I've told subpart introduction, now likhna shuru hota hai. You need to give an introduction which is short and crisp. It should be either a fact, quote, or a data statement. This is how I always tried to begin my answers. So these are the 3 things that I am narrowed down to. And too many things really spoils the broth. So I did not try to diversify this. I always stuck to this. Then also mention the source of the fact or the data point within the sentence. For example, as per bracket mein source ... So you will see in the sample which I show after this, it has started introduction in the similar way. Then the introduction should always be 15 to 20 words long. Everyone says never have a wordy and long introduction. It should be short, crisp, and to the point. 15 words to 20 words is the golden range, and it always make sure कि 3 लाइन के अंदर डिपेंडिंग ऑन साइजेस ऑफ हैंड राइटिंग 3 लाइन के अंदर वो पेज में दिख जाता है कि मैंने इंट्रोड्यूस किया है. उसके बाद 4th पॉइंट है इंट्रोडक्शन होने के बाद नाउ बेस्ड ऑन द सब पार्ट्स यू विल क्रिएट द सब हेडिंग्स. सब हेडिंग्स शुड बी बोल्ड, 5 to 7 words long, short and crisp, and one should be able to map the subpart from the subheading easily. तो ये रीडेबिलिटी वाला एस्पेक्ट मैंने फिर रीइटरेट कर दिया इसको कि भाई ऐसे सब पार्ट बनाना ताकि वो एग्जामिनर को इजी लगे. फिर मेन पॉइंट आता है कि आप पॉइंट्स कैसे पॉपुलेट करोगे. तो इसमें है अंडर द सबहेडिंग यू नीड टू फॉलो द फॉलोइंग फॉर्मेट. ईच सबहेडिंग शैल हैव 5 points each. Each point should be generic and filled with keywords that relate to the syllabus I displayed earlier. 5 points is just for the sake of this demonstration. When I was preparing my notes, मैंने 8-9 points per subheading generate कराई थी because रिवाइज करते करते इतना समझ आ जाता है कि अगर 8 याद कर रहे हो तो उसमें से मे बी 6-7 ही रिप्रोड्यूस हो पाए. तो वो एक्यूरेसी और स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से मैंने अपना 8-9 पॉइंट्स जनरेट किए थे. अभी फॉर द सेक ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन आई हैव पुट इट टू 5. You can make it generate as many points as you wish to incorporate. And my advice on this is कि make sure कि जितना you can retain and reproduce within 7 minutes in a 10 marker or 11 minutes in a 15 marker, उतने points ही याद करने की कोशिश करो क्योंकि उतना ही reproduce हो पाएगा. एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है. फिर each point should be between 7 to 9 words long only. Everyone says कि लंबे पॉइंट्स मत लिखो, इट शुड बी इजी अंडरलाइंड. तो उसके हिसाब से 7 to 9 वर्ड्स का एक पॉइंट विल टेक like 2 lines or 2 lines of your particular mains का answer page. Then I have also mentioned a lot of people have asked कि maybe their command over the language in English is not as good as they want to be. Then how to write such short and crisp answer? So I have given this particular prompt and I used it extensively as well. It does not matter if you have the command over the English language or not. The main thing is that keywords ही देखते हैं, and उसके अलावा when you read it in a flow, it should make sense in everyone's mind, not only in your mind, in everyone's mind. So proper grammar isn't necessary, but the sentence should make sense when read at once is a specific command I've given for all the points. Then everyone says कि value addition is important. So after each point, I need to I need an example marked as EG. This example should never cross 7 words. Your example can never be bigger than your point. Otherwise, the example should be the point and your point should be the example. Then it should be a fact, a case study, a real life happening, a number or a data. Now, if you can focus on the broad horizons of the instances I mentioned,
A real life happening will most likely be picked when the AI agent is answering your GS4 question, but it will usually take a case study, fact, or a number of data when it is other GS papers. So this is how I'm saying that this is a prompt that can be used across all papers, across all options. Then make sure that you must prioritize numbers and figures wherever you find it. This is an extra line I've written because this is a GS3 window and numbers are appreciated, and economic survey में numbers बहुत हैं which need to be quoted. It is more appreciated. After the 7 words or so, there should be the source mentioned in the following format. Source name in 2-3 words. Economic survey है तो economic survey लिख देगा. NABARD का data है तो NABARD लिख देगा. This is how you present in your answers. So this is how I have also asked it to do. Now coming towards the last few points, the point should be numbered and there should be a line break after each point. The example should be in immediate next line of the point which is supporting that, and that should not be a part of a numbered list. ये बस आपकी रीडेबिलिटी है कि आपकी नोट्स जो ऑनलाइन आप बना रहे हो ये आप ही को समझ आए और कुछ ज्यादा क्लस्टर्ड ना रहे. इसके लिए ये कैन बी स्किप्ड if you can read it, but I advise it just because it looks cleaner. Then last May, after all the subheadings have been populated in the above format, write a way forward. Way forward is something that I have incorporated in every question and answer across all papers. लोग कहते हैं हिस्ट्री में वे फॉरवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है. मैंने हिस्ट्री में भी वे फॉरवर्ड लिखा है कुछ ना कुछ. देयर आर लॉट ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल थीम के schemes that the government is trying to pitch and actually implement, and I have went through a few of them and I'll show ki how to map down all those particular schemes because bahut sare hain, but that's towards the end. So way forward likhna is something that I advise across all answers. Then the subheading should be way forward only. Under this there should be 3 points. 3 hi likhta tha har baar, and each point should not be more than 8 words long. It should be forward looking approach. I am not expecting ChatGPT to know ki what the word way forward means. I am explaining it to ChatGPT ki it means that it should be optimistic and forward looking. Should not be general but should include schemes, best practices and initiatives that are mentioned in the sources. ये 3 चीज ही way forward में सबसे ज्यादा fit होती है. Then I have added this. Then I have also said emphasize on naming ongoing things, schemes, case studies, initiatives that helps. तो ये पूरा वही है कि वे फॉरवर्ड में करंट एस्पेक्ट भी डाल दिया. यूजुअली लोग लिख देते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, देन इन्वॉल्विंग पीपल या फिर एजुकेटिंग द मासेस. दीज आर नॉट वे फॉरवर्ड. दिस इज जस्ट प्लेस होल्डर्स. Way forwards in my opinion should always be targeted and should, you should also show your administrative acumen that you are aware of the scheme, and if you were to right now implement this on ground, then you knew which exact scheme to utilize and bring the change. That's why you are there. तो वो administrative acumen display करने के लिए way forward में targeted schemes and initiatives or a model is very welcomed and rewarded. Then last point is about the conclusion. It should be 10 to 15 words long. It should be forward-looking and optimistic. It should reference practices like SDGs and famous taglines of Indian government, like Viksit Bharat is an example. More taglines can be taken from economic survey if available. So this is because SDGs are the simplest and the best way to conclude an answer. Like it is very used, but it is very fitting. So don't think कि a lot of people are using it. If they are using it because it works, then make sure कि यहाँ पर ज्यादा diversification ना करने का time होता है एक आंसर कंप्लीट करने के बाद, ना करने की जरूरत है. And various taglines like विकसित भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत, these are very general terms which are always forward looking when you quote them. So you should use that. Now, since I have gone through the particular prompt, it would be only fair if I show you the result. ये 2025 का एग्रीकल्चर का 10 मार्कर है जो आया था, and I have written this question in the main exam. It is explain the factors influencing the decision of the farmers on the selection of high value crops in India. अब अगर इसको डायरेक्टली ChatGPT पे डालते तो इतना ऑर्गेनाइज नहीं आता, बट आई जस्ट वांट यू पीपल टू सी कि कितना ऑर्गेनाइज्ड और शॉर्ट वे में आपका टेक्निकली हाई वैल्यू क्रॉप्स के जो एक सब टॉपिक है एग्रीकल्चर के अंदर, टेक्निकली ये नोट्स बन गए उसके. अब इसको आप क्वेश्चन की तरह रिवाइज करें या हाई वैल्यू क्रॉप्स एज अ टॉपिक रिवाइज करें,
अगर इतना रिटेन हो गया मेंस में, देन यू आर ऑल सेट टू आंसर a particular question on high value crops. The answer is, as per Economic Survey 2026, crop diversification towards high value agriculture driven by rising incomes, demand patterns, and market integration. So, rising incomes, demand patterns, and market integration are three keywords that you have mentioned in the introduction itself, and it is a very impactful introduction. If you can internalize this particular style, then that's very well welcomed. Just as a disclaimer again, it's not that I have memorized these intros at all. My memorization skills are very subpar, and I always used to just get the essence and paraphrase whatever I've read and tried to remember. So practice karte karte and isko reproduce karte karte, I had gotten into the habit by the main day where I knew that my answer should be keyword heavy in every sentence. Then demand driven diversification and price incentive factors. This is exactly what is written in the question. Then they have given 5 points. I will read through 2-3 points and tell you there is a mistake in this particular response. Rising income levels, increasing demand of high value crops, food demand shift post to 2011, economic survey source दे दिया. Urbanization boosts consumption of fruit, vegetables, dairy. ये अपने हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं. 35% अर्बन पॉपुलेशन, इको सर्वे फिर बोल दिया. थर्ड पॉइंट आया, बेटर प्राइस रियलाइजेशन कंपेयर टू स्टेपल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, हायर रिटर्न्स देन सीरियल्स, ये भी इको सर्वे में लिखा हुआ है. मैंने नोटिस किया कि व्हेन आई वाज मेकिंग दिस फॉर यू गाइस दैट आई कैन नॉट डिस्प्ले दिस. यू कैन नॉट पर्टिकुलर जस्ट से कि मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं, 10 में से 9 बार मैंने इकोनॉमिक सर्वे का वैल्यू एडिशन कर दिया. द एग्जामिनर विल थिंक कि ये बस इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ के है, इसको और कोई नॉलेज ही नहीं है. Why create unnecessary impediments for your marks despite you know so much? So before going forward, I gave it another. This is an example of reinforcement learning. मैंने बोल दिया the sources need to be diversified. Not everything can be from EcoSurvey. Dive deeper into X Factor notes, which is my secondary source, and follow the sources from there as well. Answer the question again. अब इसने intro ही change कर दी, which is fine. Now you have 2 intros for the same topic. As per NSSO's situation assessment survey, diversification towards high value crops driven by profitability, risk mitigation, and is driven by profitability, risk mitigation, and market access dynamics. फिर से 3 keywords के साथ इसने इंट्रो खत्म कर दिया. अब उसी सब सेम सब हेडिंग के नीचे पहला पॉइंट, राइजिंग इनकम शिफ्टिंग डिमांड टुवर्ड्स हाई वैल्यू कमोडिटीज. इसमें एग्जांपल है मिल्क डिमांड इंक्रीजिंग, ये एनएसएसओ से ही है. अर्बनाइजेशन का पॉइंट जो मैंने पहले बताया था वो है इकोनॉमिक सर्वे से. फिर हाइयर प्राइस रियलाइजेशन कंपेयर टू सीरियल क्रॉप्स, नीति आयोग की केस स्टडी है एक्स फैक्टर में, और उसी में लिखा है कि हॉर्टिकल्चर गिव्स 3x रिटर्न्स कंपेयर टू सीरियल. उसको क्रिप्टिक वे में आप ये रिवाइज करोगे, लिखते लिखते आपके आइडिया आ जाएगा. फिर देखो कि इसमें ना कोई सब पार्ट नहीं था इस क्वेश्चन में, तो इसने सीधे एक सब पार्ट बना दिया टू शो जस्टिफाई द 10 मार्क्स दैट यू आर ट्राइंग टू गेट, जिसमें से यूजुअली यू गेट 5 मार्क्स 6 मार्क्स एट मैक्स. इसमें लिखा है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी विच इनेबल्स दीज फैक्टर्स. फर्स्ट इज इरिगेशन एक्सेस, इसमें स्कीम लिख दिया सीधे सीधे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. इकोनॉमिक सर्वे की केस स्टडी होगा एक बॉक्स में. एक और स्कीम दे दिया कि गवर्नमेंट स्कीम्स प्रमोटिंग हॉर्टिकल्चर एंड डाइवर्सिफिकेशन शुड, इसको प्रमोट करना है. MIDH स्कीम है ये, एक्स फैक्टर नोट्स में एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टली कोटेड है. फिर मार्केटिंग रिफॉर्म सजेस्ट किया है, उसमें ई नाम का एग्जांपल दे दिया कि इतने मंडीज हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे में है. कोल्ड स्टोरेज इज इतने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं हमारे, तो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ये नाबार्ड ने मेंशन किया है, विच इज वेरी ट्रू. फिर वे फॉरवर्ड में आते ही एक्सपैंड ऑपरेशन ग्रीन्स बियॉन्ड टॉप क्रॉप्स. नाउ मैंने ऑपरेशन ग्रीन स्पेसिफाई कर दिया वे फॉरवर्ड में, तो पता चल गया कि भाई ऑलरेडी हाई वैल्यू क्रॉप्स पे एम्फेसिस चल रहा है, तो उसी बेसिस पे ऑपरेशन ग्रीन्स को टारगेट करके इसको और बढ़ावा देना चाहिए. फिर FPO लेड एग्रीगेशन एंड मार्केटिंग, इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए. FPO पे भी इट इज अ डायरेक्ट सिलेबस पॉइंट. सो सिंस रिमेंबर दैट आई हैड आस्क्ड दिस पर्टिकुलर चैट टू रिमेंबर की मैप द कीवर्ड्स, तो इसने FPO को याद किया. इट इज अ डायरेक्ट कीवर्ड फ्रॉम द सिलेबस.
फिर स्केल एग्री स्टैक एंड डिजिटल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स। तो डिजिटल एग्री स्टैक इज अनदर कीवर्ड एंड रिपीटिंग थीम, पीवाईक्यूज में भी आया हुआ है, तो उसको यूज किया है। और लास्ट में इसने कर दिया है हाई वैल्यू एग्रीकल्चर कैन ड्राइव विकसित भारत विजन इंश्योरिंग इनकम सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी एंड एसडीजी अलाइंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। So this is now an ideal answer. If you are able to retain 70% of it and reproduce it, then you will score one of the highest marks in that particular question. And the whole game is to make sure that you revise what you want to reproduce. मैंने बस यही चीज की है। नीचे मैंने एक और चीज कर दी थी कि ये आपके लिए 15 मार्कर बना दिया था। Rather than going through this, I will right now take a क्वेश्चन लाइव एंड डेमोन्स्ट्रेट की कैसे जनरेट हो रहा है। सो दिस इज द माइक्रो थीम डॉक्यूमेंट दैट आई यूज्ड। और इसमें अगर माइक्रो थीम में मैं देखूं कि कोई रिसेंट क्वेश्चन मेरे को मिल जाए ईयर वाइज, हाँ, तो 15 मार्कर का मेरे को फूड प्रोसेसिंग का एक क्वेश्चन मिला है जो लास्ट ईयर मैंने लिखा था। आई जस्ट कॉपी इट एंड आई से answer the means question, 15 marks. Again, it has हर बार हर साल इकोनॉमिक सर्वे में फूड, एंड सिंस food processing industry is like the favorite topic of UPSC in this particular syllabus point, हर साल नहीं तो हर alternate साल FPO पे क्वेश्चन आता ही आता है। I was very prepared for this topic. तो ये मैं दिखाऊंगा कि how I was very prepared of this topic. एंड इसमें फिर इसने आंसर दिया एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2026 फूड प्रोसेसिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स इतना टू द मैन्युफैक्चरिंग जीवीए ऑफरिंग सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट एंड वैल्यू एडिशन पोटेंशियल। दिस इज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन दैट उसमें से मेरे को 13% अगर याद रह जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे याद रह जाएगा, इसको पैराफ्रेज करके मैं अपनी भाषा में लिख लाऊंगा। फर्स्ट सब हेडिंग बनाया स्कोप एंड पोटेंशियल का, उसमें 5 पॉइंट्स बताए और इसमें इकोनॉमिक सर्वे के इसने बता दिए हैं। आई वुड नॉट pain you through each and every point since I've been speaking for so long, so I'll make sure you guys don't get bored. तो उसने फिर NSSO, पीडा, नबार्ड, नीति आयोग सबके एग्जांपल्स दे दिए। इसने फिर सेकंड सब हेडिंग बनाया सिंस ये 15 मार्कर है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रमोटिंग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ग्रोथ। इसमें इसने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का डेटा डायरेक्टली उठा दिया, इकोनॉमिक सर्वे का उठा दिया, नबार्ड का उठा दिया, और फिर वही सब चीज ऑपरेशन ग्रीन्स, फॉर्मलाइजेशन थ्रू PFF, ये PMFME, फिर कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, सारे कीवर्ड्स हैं। PLI स्कीम का भी मेंशन्ड है यहाँ पे। फिर थर्ड सब पार्ट एज आई मेंशन्ड कि 15 मार्कर में 3 सब पार्ट होने ही चाहिए, 3 पेज भरने यार, तीन सब पार्ट से कम लिख ही नहीं सकते। इसमें फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला एस्पेक्ट कर लिया। इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आता है कि फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आता है अगर आप सप्लाई चेन्स और जो ट्रक चलाते हैं, जो वेयरहाउस मैनेजमेंट करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, उनका भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा अगर हम इसमें करेंगे। फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट डायरेक्टली कोट कर दिया है जिसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एम्फेसिस है। विमेन का एक एस्पेक्ट कर दिया है। तो इट इज वेरी मल्टी डायमेंशनल वंस यू टेल इट एंड यू लिमिटेड सोर्सेज। एंड द फनी थिंग इज कि माइक्रो थीम्स एज वेल एज एक्स फैक्टर नोट्स में मल्टी डायमेंशनली ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है अगर आपने वो पढ़ा है तो उसके हिसाब से ही वो उसने भी वही पढ़ा है और उसी तरीके से निकाल रहा है। फिर यहाँ पर देखो सीधे सीधे 2 स्कीम्स डाले हुए हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक एजेंसी दी हुई है। फिर सोर्सेज यूज्ड यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। सिंस यहाँ पर कोई ब्लू लिंक नहीं है, दैट मीन्स इट हैज लिसन टू मी एंड हैज नॉट रेफर टू द इंटरनेट। So guys, this is one of the best kept secrets, right? All power users of ChatGPT have their master prompts, right? And आप शुभंकर, आपको भी बहुत इटरेशंस लगे होंगे यहाँ तक पहुंचने में। इट्स नॉट लाइक द फर्स्ट 15 मिनट्स यू हैव, ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस बैक एंड फोर्थ करके यू हैव कम अप विद these points, right? Sir, I'll just for complete honesty, ये नीचे आप अगर मैं लोड करते जाऊंगा तो ये सारे मेरे वही हैं। अभी और लोड होएगा तो ये देखिए, ये बस वही है, मी ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट and my tryst with ChatGPT. So this is not a one-day effort. This is like it has taken time too. Do you have a master prompt? First question is different. Prompting तो आप कुछ कुछ कर रहे होंगे, but एक master prompt है
that starts, this is where the iteration starts, right? आपने अगर शुभांकर को भी देखा होगा, मास्टर प्रॉम्प्ट ने जब पहला आंसर दिया है उसके बाद he has gone back and then revised it again, right? But that master prompt is sort of doing bulk of the job. That's the idea behind having a master prompt, right? अच्छा, आप लोगों ने ना जेनेरिकली भी ये बहुत बातें सुनी होंगी, चैट जीपीटी आ गया, चीजें कितनी आसान हो गई हैं, ठीक है? एक क्वेरी हम लोगों ने, वी गिव वन क्वेरी एंड एवरीथिंग इज रेडी, राइट? ऐसा नहीं है. सो शुभांकर हैज टेकन मल्टीपल इटरेशंस टू गेट टू अ मास्टर प्रॉम्प्ट. आप पहले ये समझो, तो आपका टाइम यहां पे ज्यादा जा रहा है, एट द सेम टाइम रिव्यू पे आपका टाइम ज्यादा जा रहा है, राइट? तो व्हेन यू कंपेयर दिस न्यू प्रोसेस दैट यू हैव विद चैट जीपीटी वर्सेस द ओल्ड ट्रेडिशनल वे वेर यू वर गूगलिंग, खुद से आप कॉपी पेस्ट करके अपना नोट बना रहे थे, राइट? तो वहां पे आपके रिव्यू का टाइम कम था, वहां इनिशियल प्रॉम्प्ट में आपको टाइम कम स्पेंड करना पड़ रहा था, उन जगहों पे आपका टाइम कम स्पेंड था. आपको लिखने में, कंसोलिडेट करने में, कॉपी पेस्ट करने में, फॉन्ट सेट करने में, इन सब में आपको टाइम ज्यादा लग रहा था, राइट? वो चीजें फ्लिप हो गई हैं. सो अगर आप अच्छे से चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं ना, आपको ये समझ आ जाएगा कि ये इतना ज्यादा टाइम सेव नहीं कर रहा है, ये आपको क्वालिटी ऐड कर रहा है, एंड आपको टाइम इसको देना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक इट्स गोइंग टू रीड योर माइंड, और आपको आपको बैठे बैठाए आपके मुंह में लड्डू आ रहा है इस तरह का. दैट्स नॉट द वे इट इज. एंड अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ टॉपर्स एंड अदर वीडियोस मेक इट साउंड लाइक इट हैज ऑटोमेटेड एवरीथिंग, राइट? आपको बस कुछ नहीं, यहां पे बस एक सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस की क्वेरी करनी है एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट? सो दैट्स नॉट द सिनेरियो एट ऑल, ठीक है? रिव्यूइंग आपको करना ही करना है, ज्यादा टाइम लगेगा. एट द सेम टाइम आपका इनिशियल इंस्ट्रक्शन बेस वो पूरा डिजाइन करने में आपको टाइम लगेगा. देर कुड बी मोर डायमेंशंस. अब जैसे यहां पे आप देखोगे नीचे, शायद इन्होंने सेकेंड इटरेशन में एक पॉइंट दिया था कि इनकम सिक्योरिटी ऑफ फार्मर्स एंड इनके लिए भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत बहुत जरूरी है, राइट? हायर वैल्यू क्रॉप्स की तरफ. Something like that probably will make for a better, more powerful introduction than stating a trend, right? The fact that we are trying to state कि ये कितना critical है, ठीक है? अगर हम हाई इनकम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हमारे फार्मर्स की इनकम सिक्योरिटी एंड देन उनकी सॉर्ट ऑफ लाइफ सिक्योरिटी इंपैक्ट हो रही है. दैट बिकम सॉर्ट ऑफ अ मोर हार्ड हिटिंग इंट्रोडक्शन टू बिगिन विद. सो ये वाले जो इटरेशंस हैं, ये अब आपके जजमेंट में, ठीक है? एंड द प्रॉम्प्ट दैट, अच्छा, प्रॉम्प्ट के बारे में आपको अगर एक दो चीजें मैं बताऊं, द प्रॉम्प्ट इज सच दैट, सो जैसे शुभांकर ने बताया कि अगर आपके पास 10 मार्कर है, 2 सब हेडिंग्स, 15 मार्कर है, 3 सब हेडिंग्स, आइडियली, ठीक है? इफ यू आर स्पीकिंग इन एन आइडियल सेंस, एक्चुअली क्वेश्चन डिटरमिन करता है कि आपके सब हेडिंग्स कितने बनेंगे. अगर क्वेश्चन के और ज्यादा पार्ट्स हैं तो इवन फॉर अ 10 मार्कर आपको 3 सब हेडिंग्स बनाने पड़ेंगे. बट दैट कॉम्प्लिकेशन सेंड्स चैट जीपीटी इनटू हेलुसिनेशंस, ठीक है? आपने उसके लिए और एक कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस कर दी कि क्वेश्चन से वो ही समझे कि ये 3 सब हेडिंग में डिवाइड करना है कि 2 सब हेडिंग में डिवाइड करना है, राइट? सो दैट बिकम्स मोर प्रॉब्लमैटिक. नाउ शुभांकर हैज दैट, तो शुभांकर ने वो चीज सिंपल कर दी है, ठीक है? 10 मार्कर है, आप मुझे 2 दे दो, बाकी मैं समझ लूंगा. अगर वहां पे एक और सब हेडिंग का स्कोप बनना है, अगर एक और क्रिटिकल एनालिसिस वाली सब हेडिंग बनानी है, राइट? दैट इज समथिंग दैट आई विल फिगर आउट ऑन माई ओन. वो चीज मैं आउटसोर्स नहीं कर रहा हूं, ठीक है? आप मुझे 2 सब हेडिंग में सारे पॉइंट्स दे दीजिए, एवरीथिंग अदर देन दैट इज माई प्रेरोगेटिव, आई विल फिगर दैट, राइट? सो आपके पास भी ना अपना एक सेंस होना बहुत जरूरी है टू पुश द बाउंड्रीज, राइट? विथ मी ऑन दिस, शुभांकर? Yes, sir. So there is also one disclaimer कि this is like after years and years of reading basic sources as well as creating your own notes and internalizing concepts based on which I'm able to make this judgment that the responses I'm getting is correct or not. That's why source mapping as well as verification of sources is something that I understand कि अगर ये बोल रहा है नपीडा से मेरा दिमाग कनेक्ट कर पा रहा है, तो there is, no matter how advanced AI gets, until and unless conceptual clarity is there to make sure that in your mind you can make this justification कि अगर ये कुछ कोट कर रहा है ये सही है कि नहीं है, then this whole process goes down the drain. तो
वो एक डिस्क्लेमर कि लक्ष्मीकांत अगर पढ़नी है 6 बार 7 बार तो पढ़नी ही है, वो मैंने भी पढ़ी है। मेंस में उसको कैसे कन्वर्ट किया एफिशिएंटली, दिस इज वेयर इट कम्स। दिस इज नॉट अ कंप्लीट री ओवरहॉल ऑफ द होल प्रोसेस, दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ मेंस प्रिपरेशन। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। गाइस, अनदर पॉइंट हियर, सी, जितने भी चैट जीपीटी के इश्यूज हैं, राइट, हम लोगों ने ना वो सब लग के सॉल्व करके एक्स फैक्टर नोट्स, एक लेवल के नोट्स आपको दिए हैं, ठीक है। सो एक्स फैक्टर नोट्स विल हैव ऑल द सोर्सेज आर वेरीफाइड, ठीक है, सब गवर्नमेंट सोर्सेज हैं। द बेस्ट, द फाइनेस्ट हिंदू आर्टिकल्स, एवरी वंस इन अ वाइल हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आता है जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक स्पेसिफिक टॉपिक या एक स्पेसिफिक थीम कवर करता है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें वो कर रहा होता है, राइट। उन सब आर्टिकल्स को लेके एक्स फैक्टर नोट्स में टू द एक्सटेंट पॉसिबल इनको मर्ज किया गया है, राइट। सो दिस इन इटसेल्फ बिकम्स लाइक हाई लेवल सॉर्ट ऑफ, एक हाई लेवल के नोट्स ऑलरेडी आपके पास हैं जो बेसिक चैट जीपीटी वैसे भी हरा नहीं सकता, ठीक है। शुभांकर अब उससे एक लेवल ऊपर, उसके बियॉन्ड मूव कर रहा है, राइट। सो ही इज ट्रीटिंग एक्स फैक्टर नोट्स एज अ सोर्स। एट द सेम टाइम एक्स फैक्टर नोट्स के फॉर्मेट को भी ही इज ट्राइंग टू से दैट इस सिमिलर फॉर्मेट, ये क्लोजेस्ट फॉर्मेट है जिसपे मुझे बाकी और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू सॉर्ट ऑफ अक्नॉलेज। आप अगर खुद बैठे हैं अपने सब स्टैंडर्ड नोट्स बना रहे हैं जो एक्स फैक्टर नोट्स के भी नीचे हैं, उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। आप चैट जीपीटी के साथ लगे हैं और आप एक्स फैक्टर नोट्स से भी नीचे के नोट्स, नीचे के कंटेंट, इट्स नॉट हार्ड हिटिंग, यू आर प्रोड्यूसिंग दैट, राइट। शुभांकर इज डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। वो एक्स फैक्टर के बियॉन्ड जा रहे हैं, एक्स फैक्टर इज अ सोर्स, ठीक है, वो उसके उसके बियॉन्ड गए हैं। एंड द enrichments दैट आर नॉट देयर, राइट, बिकॉज एक्स फैक्टर हैज अ डिफरेंट डिजाइन। वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बना है, वो आपको एक जनरल सेंस में एक हर क्वेश्चन के पास आपके पास मीठी चीजें हो, दैट्स द डिजाइन, राइट। आपको अब कुछ चीजों में डीपर जाना है तो फिर आपको आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो ही इज ऑपरेटिंग एट दैट लेवल। हाँ, तो पार्ट ने यही कहा, हिडन डिमांड्स कैसे कैसे एड्रेस करें, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट जीपीटी विल स्ट्रगल। पार्ट, आप उसे 2-3 एग्जाम्पल देके ये समझा सकते हैं कि ये देखो, ये हिडन डिमांड होती है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन में आप उसको ये बोल सकते हो कि इसमें आपको समझ आ रहा होगा एक हिडन डिमांड है, गो हेड एड्रेस इट, राइट। एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू लाइक, ये चीज ना हिट या मिस वाले चीज में रहेगी और ये अब आपको कैलकुलेट करनी है। So all these different kind of platforms that have come up that they say that आप आंसर अपलोड करिए और हम आपको मार्क्स दे देंगे, उनमें ये सारे नुआंसेस मिस हो रहे हैं, ठीक है। वो हिडन डिमांड, उनका वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड हो गई नहीं, बिकॉज आपने खुद देखा होगा इस टाइम पे भी शुभांकर कितनी बार रीइंफोर्स कर रहे हैं, राइट। ही हैज रिपीटेडली सेड, थिंक ऑफ दिस एज अ लिटिल चाइल्ड जिसको बार बार चीजें बतानी पड़ रही है, नहीं तो फिर ये भूल जाता है, ठीक है। इट लूजेस ट्रैक, इट लूजेस कॉन्टेक्स्ट। आपने मुझे क्या बोला था, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। इट लीक्स, इसकी मेमोरी जो है ना वो लीक करती है, ठीक है। आप ये जितना ये लास्ट का 10 पॉइंट, जैसे 10th पॉइंट जिस लेवल पे रिटेन करा होगा उतने ही फर्स्ट पॉइंट का रिटेंशन इसका नहीं होगा, ठीक है। एज ये इट हैज अ डिफरेंट आर्किटेक्चर ऑल टुगेदर, ठीक है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट लीकी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना आप जितना समझेंगे उतना ही ज्यादा इस सिस्टम के आप पावर यूजर बन पाएंगे। एंड ऑल द पॉइंट्स दैट हैव कम हियर, आप खुद सोचिए, दिस इज क्रिएटिंग लाइक अ मैसिव एज फॉर शुभंकर। हिज आंसर लुक्स लाइक इट्स नॉट कम फ्रॉम अ ट्रेडिशनल कोचिंग मटेरियल, ठीक है। अगर आप वहां पे पॉइंट्स देखेंगे, ट्रेडिशनल कोचिंग मटेरियल जो है वो बिल्कुल एक प्रिडिक्टेबल वे में ना आपको आपको देख के समझ आ जाता है कि ये एक ट्रेडिशनल कोचिंग है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्टेक होल्डर अप्रोच वाइज चले होंगे और बहुत ऊपर ऊपर की बातें करके निकल गए होंगे, राइट। बट यू हैड अ लॉट ऑफ डीपर पॉइंट्स ऑल्सो इन द आंसर दैट हैड बीन प्रोड्यूस्ड, राइट। और वो अगर आप डीपर पॉइंट्स रेप्लिकेट कर पाते हैं अपने आंसर में, डेफिनेटली यू आर हैविंग एन एज, आपके पास एक फ्रेशनेस है, ठीक है। अब हम लोगों ने अपने एस्पिरेंट्स को एक चीज करने को बोली है कि जिस मंथ मेंस हो रहा है, ट्राई टू गेट एग्जाम्पल्स फ्रॉम दैट वेरी मंथ इटसेल्फ, राइट। आपका जब मेंस का पेपर है, ये 6 महीने पहले का आप कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं नहीं, जो उस टाइम पे फ्रेश है एंड
इट हैज हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री। ऐसा भी नहीं कि फ्रेश एग्जाम्पल बट किसी ने सुना नहीं है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप हो रहा है सम इशू, बट उसकी अगस्त में सितंबर में बहुत ज्यादा बातें हो रही है। देन आप जाके इन एग्जाम्पल्स की तरफ ज्यादा ज्यादा टिल्ट कर रहे हैं, राइट? सो अब देखो भाई, कंपटीशन उस लेवल पे है जहां एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट एन एज फॉर देमसेल्व्स आफ्टर दे हैव फिनिश्ड ऑल द बेसिक्स, ठीक है। एक्स फैक्टर हो गया, पढ़ लिया, एक्स फैक्टर शुभांकर ने लास्ट ईयर कर लिया था, इस साल अब वो कुछ नया कर रहा है। नेक्स्ट ईयर, गॉड फॉरबिड, टचवुड, नेक्स्ट ईयर वाला सिनेरियो होता तो ही वुड हैव पुश बाउंड्रीज इवन फर्दर, ठीक है। तो वो चीजें वो चलते जा रहा है, Sir, ठीक I है। think it will be best since we have spoken. Now I'll show ki how uh, all this culminated into my mains notes and how that is what I have repeated like I used to read Lakshmikant and everything. And वो फिर इन सब लोग पूछ रहे हैं ना कि ये कैसे हिडन क्वेश्चन कैसे एड्रेस होता है, ये कैसे याद रह जाएगा। मैं एक चीज की गारंटी दे रहा हूँ, अगर कहीं से मेरे आंसर्स पब्लिक हो जाए, मेरे आंसर मतलब जो एक्चुअल आंसर्स हैं जिस पे मार्क्स आए, एक भी लाइन मैच नहीं करेगी। वो बस पॉइंट्स इतनी ज्यादा दिमाग में घूमने लग जाते हैं कि और फ्लो समझ आ जाता है कि मैं पहले अब नोट्स दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अपना आंसर भी दिखा दूंगा। ये मैंने नोशन यूज किया है, और सिंस वी वर डिस्कसिंग एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, अब मैं सीधे यहाँ पर जाता हूँ कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग वाले सिलेबस पॉइंट पे गया। अब अच्छा, बीच में आपने देखा होगा कि आप कह रहे हो ना कि पूरा चैट जीपीटी, ये देखो हैंड रिटन नोट्स भी जो मेरे सोर्सेज थे उसके मैंने बीच बीच में बनाए हुए हैं, एंड दिस इज व्हाट आई हैव एडेड। फिर फूड प्रोसेसिंग ये पूरा ये है। अब सीधे सीधे मैंने जो आंसर निकाला था, ये पीवाईक्यू माइक्री थीम पे है, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस बहुत बार आया हुआ है पीवाईक्यू पे। मैंने प्रिपेयर कर लिया हाई पोटेंशियल ड्यू टू सरप्लस। फिर मैंने उसको उस समय ये समझाया हुआ था कि भाई उसके 3 सब पॉइंट्स दे देना, और एग्जाम्पल अभी शॉर्टन मत करो, अभी मेरे को ऐसे दे दो। तो उसने नोट्स बना के दे दिए मेरे को कि ऐसे नोट्स हैं, और फिर एक बड़ा पॉइंट है उसके अंदर उसकी जस्टिफिकेशन है कि क्या क्या हो रहा है, फिर नंबर है, और फिर ये कौन सा सोर्स है ब्रैकेट में वो दिए जा रहा है मेरे को। सेम चीज हो रही है, और मैंने आपको बताया कि सिंस अभी ज्यादा पढ़ूंगा, तब मैं अगर 7 तक पढ़ूंगा तो मैं भी 5 तक रिप्रोड्यूस कर दूं। मैंने वही किया है, मैंने 7 तक किया, फिर वो किया। एंड सिमिलरली फिर उसके बाद आया पॉलिसीज टेकन बाय गवर्नमेंट टू मीट चैलेंजेस। तो मेरे को सारे स्कीम्स फूड प्रोसेसिंग की यहाँ पर याद हो गई। अब मैं जब ये पढ़ रहा हूँ, इसका पीडीएफ मेरा बना था सर A4 साइज शीट पे, पूरे जीएसटी का 100 पेज का। तो वो 100 पेज ही मैंने 3-4 बार रिवाइज कर लिया, मतलब 3-4 से ज्यादा बार रिवाइज कर लिया, एंड तक वही करते रहा मैंने। इसके बाद इससे शॉर्ट नहीं किया कुछ, इसके बाद इसी को इतने बार इंटरनलाइज किया, आंसर आते गया, सारे स्कीम्स आ रहे हैं। और ये इसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एक्स फैक्टर नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स, एक दो और जो भी मेरे पास फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन पीडीएफ थे वो भी डाल दिए मैंने, सबसे निकाला है मैंने उसको। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग जो आपने मेंशन किया ना कि एक कोचिंग लैंग्वेज मिस हो रही है, वो सब इसी के थ्रू मैंने उस फिल्टर को हटा के बहुत एडिक्वेटली, और दिमाग भी इसी लैंग्वेज में सोचने लगता है आफ्टर यू स्टडी फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या है, इफ आई गो टू सम अदर सेक्शन कंप्लीटली, मैं अगर आपको दिखाऊं, सिंस दिस इज एग्रीकल्चर एंड वी हैव बीन ऑन एग्रीकल्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो अगर आई गो टू इकोनॉमी, इट विल टेक अ मोमेंट टू लोड। अब इसमें अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बजटिंग के टॉपिक पे, ये गवर्नमेंट, अब ये तो मेरे बेसिक नोट्स हैं कि क्या क्या था, ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स ही हैं ये सब जो मैंने उठाए हुए। कहीं ना कहीं फिर यूनियन बजट को मैंने अपलोड किया, ये यूनियन बजट की समरी है जो मैं याद कर रहा था। अब अगर मैं एग्रीकल्चर फर्स्ट इंजन, एमएसएमई सेकंड इंजन, इन्वेस्टमेंट थर्ड इंजन, उसके और एक्सपोर्ट्स फोर्थ इंजन का अगर मैं एक स्क्वायर बॉक्स में डायग्राम बना दूं कोई भी इकोनॉमी के बजटिंग में, या तो दिस विल एक्ट एज अ पर्टिकुलर वो। फिर अगर पीवाईक्यू थीम है बैलेंस ऑफ, इसमें तो देखिए अब पीवाईक्यू थीम जिन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ था माइक्रो थीम, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है कि गिव एन ओवरव्यू। अब ये सिंस ऐसा टॉपिक है, इसमें नोट्स की जगह उसी का आंसर को मैंने नोट्स की तरह ट्रीट किया, डिसएडवांटेजेस, और फिर इतना ये इसमें वर्ड लिमिट मैंने बढ़ाई भी है।
मैंने जैसे बोला था कि फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन में 170 और 280 कर रहा हूँ, आप वर्ड लिमिट रखो ही मत। अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए वो ऐसे बना के दे देगा कि हब्स क्या है, सब कुछ बता देता है। और सिमिलरली फिर मैंने इसी को पढ़ पढ़ के यहाँ पर, और दिस दिस ऐप हैज आल्सो रियली, नोशन का भी ये फ्री वर्जन है, आई हैव नॉट पेड फॉर इसके लिए भी। एंड इसके थीम्स आइडेंटिफाई किए इंक्लूसिव ग्रोथ के, डायमेंशंस ये सब नोट्स पे बनाए। फिर इंडिया अचीवमेंट मैंने बोल दिया कि थ्रू ऑल सोर्सेज, स्कीम क्या किया है, कितने लोग हुए, सोर्स लिख दो। यूएनडीपी का एक फाइनल रिपोर्ट था मेरे पास, वो मैंने अपलोड कर दिया मेरे को। एंड सिंस अपलोड लिमिट होती है, तो जैसे कि एक दिन मैंने छह पीडीएफ डाले, खत्म हो गया। उससे जितना कुछ निकलते गया। फिर अगले दिन का जो लिमिट है उसमें ऐड किया, क्योंकि एक दिन में तो आप कुछ एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाओगे ना। तो वो डेली लिमिट के विद इन ही मैंने किया है मैंने। और फिर उसके हिसाब से ये कहीं पे मेरे को इमेज मिल गई थी, आई डोंट रिमेम्बर विच सोर्स ऑनेस्टली, और फिर मैंने ये डाल लिया उस पे। और if I am to showcase another subject altogether, I would advise everyone to ignore the emoji, but अब गवर्नेंस इज अ वेरी डायनामिक टॉपिक। गवर्नमेंट पॉलिसीज का सीधे क्वेश्चन है, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया कि मेरे पास नहीं टाइम है कि इसको मैं अलग से पढूं। मैंने सीधे क्वेश्चन है कि नियो लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग क्या होता है, फिर उसके 10 पॉइंट निकाल दिए। मल्टी लेवल प्लानिंग के क्या होते हैं, उसके 10 पॉइंट विद एग्जांपल एंड स्कीम्स। फिर मैंने वे फॉरवर्ड निकाल दिया इसका यहाँ पे, और उसमें नीति आयोग फ्रेमवर्क, पंचायत ब्लॉक, और फिर उसको कंक्लूड करा दिया मैंने। फिर एक और क्वेश्चन लिखा, अगर मैं फिर इसी को मैं पॉवर्टी एंड हंगर में जाऊं, पॉवर्टी और हंगर इतना ज्यादा स्टैटिक टॉपिक है, उसको हंगर और पॉवर्टी में डिवाइड किया। जितने माइक्रो थीम्स में क्वेश्चंस थे, इधर जितना वैल्यू एडिशन है वो इतनी बार रिपीट होगा कि आप अगर अलग अलग क्वेश्चन भी रिवाइज करोगे, ये सेम वैल्यूज रिपीट होंगे और वो आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ माय नोट्स। मेक श्योर दैट यू क्रिएट, मेरा एडवाइस यही है कि जो भी लेंथ है जो आपको सूटेबल है, जो भी राइटिंग फॉर्मेट है जो आपको सूटेबल है, दिस इज जस्ट मेकिंग इट इजियर कि आपको कॉपी पेस्ट फॉर्मेटेड वे में मिल रहा है। इट इज अ वेरी ग्लोरिफाइड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच इज रीफॉर्मेटिंग एवरीथिंग विदाउट प्रेसिंग अ बटन। वो कर दिया है मैंने। एंड उसी का मैं अगर आपको दिखाऊं कि हाउ इट ट्रांसलेटेड टू माई आंसर्स, दिस इज माई GS3 के आंसर्स, and this I'll show the date if I have mentioned. This was 1 month before mains. नहीं, हाँ 1 month, अगस्त में था। This is 1 month before mains. So what are the main reasons behind rising household and debt to GDP ratio? As per RBI, जैसे मैंने डाला था, as per RBI ये ऐसे लिखा हुआ है। स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल है, फिर स्टेटमेंट है, फिर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे का है, उसका एग्जाम्पल है। फिर अब इधर मैं फ्लॉज भी दिखा देता हूँ। मैं भूल गया सेकंड को कैसे एग्जाम्पल के साथ में सपोर्ट करूं, मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं किया। बट ओवरऑल एक पेज में 5 पॉइंट और 3 एग्जाम्पल दिख रहे हैं। इट रियली क्रिएट्स अ मेंटल इम्पैक्ट। फिर सेकंड में इसमें 7 पॉइंट लिखे, इम्पैक्ट्स इज नॉट आस्क्ड बट मैंने डाल दिया। और फिर मेरा ये क्रेडिट इधर, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रेडिट क्रिएशन एंड हाउस होल्ड सेक्टर सस्टेनेबल डेट, 3 कीवर्ड के साथ मैंने कंक्लूड कर दिया इसको। इफ आई गो टू अनदर क्वेश्चन विच इज अ 15 मार्कर जस्ट फॉर डिपिक्शन, 11th क्वेश्चन पे जाता हूं। ये थोड़ा ज्यादा, India's manufacturing competitiveness remains low compared to other emerging economies. Identify the factors responsible for this gap and suggest a roadmap to India's position in the global value chain. अब मेरे को इधर सोर्स नहीं आ रहा था सर, वेरी ऑनेस्टली। मैंने बोला कि इट इज नॉट परफेक्ट मेमोरी, बट इतनी बार फैक्ट्स रिमेंबर किए हुए थे रिवाइज करके। मैंने लिखा, डिस्पाइट एम्प्लॉइंग 27 million people in secondary sector, India's manufacturing sector contributes only 4% of global GDP compared to 20% of China, 28% of China. ये कहीं ना कहीं मेरे नोट्स में मैं ढूंढूंगा, मेरे को मिल जाएगा, बट आई डिड नॉट रिमेंबर कि ये किधर लिखा है, तो मैंने नहीं सोर्स किया। फिर रीजंस फॉर दिस गैप में फ्रैगमेंटेशन है, यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे डायरेक्टली आ गया। फिर इनफॉर्मलाइजेशन है, यहाँ वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है वो डाला हुआ था, उसका आ गया। फिर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, विमेन पार्टिसिपेशन,
लॉजिस्टिक कॉस्ट का अगर आगे, हाँ, आरबीआई रिपोर्ट में है लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये मेरे को याद है कि पीएम गति शक्ति के रिपोर्ट में भी पहले पहले स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है कि पीएम गति शक्ति हम बना ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा 14% हाइयर कॉस्ट है देन ये। फिर इधर इंपोर्ट डिपेंडेंस में मेरे को नहीं आया एग्जांपल, मैंने नहीं यूज किया, जबकि क्रूड ऑयल डिपेंडेंस अभी इतना न्यूज में है। अभी अगर मैं ये लिख रहा होता तो मैं पक्का डालता कि हम लोग कितना इंपोर्ट करते हैं। फिर वैल्यू चेन, इस ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख दिए। फिर सेकंड सब हेडिंग आया, उसमें भी मैंने फिर स्कीम्स और ये सब ऐड करना शुरू कर दिया। और सारे स्कीम्स हैं और कीवर्ड्स है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे, पीएम मित्रा पार्क्स फॉर टेक्सटाइल बन रहा है। और इसी इसी बेसिस पे ये सेकंड पेज था। अ, हाँ, ये रोड मैप इनहांस करते करते और फिर लास्ट में मैंने, सिंस मेरे पास जगह नहीं बचा, आत्मनिर्भर भारत के साथ खत्म कर दिया। बट दिस इज हाउ आई आंसर्ड सर। सो दिस वाज अ प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कि कैसे वो नोट्स के रेपिटेशन से एक मेंटालिटी बन जाती है कि यू आर जनरेटिंग पॉइंट्स इन दैट लैंग्वेज एंड यू आर रिप्रोड्यूसिंग इट। एंड आई वांट एवरीवन टू सी कि दिस इज नॉट इवन 60% ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट माय नोट्स आर। वो कुछ ज्यादा ही सुंदर और आइडियल है एंड आई डू नॉट रिकमेंड एनीवन टू चेज दैट। बट उसको चेज करने की कोशिश करते करते पक्का 60-70% तक का पहुंच जाते हैं, जिससे एक वेल टू मतलब वेल फॉर्म्ड आंसर और एक वेरी होलिस्टिक पेपर निकल के आता है विच रिवॉर्ड्स पीपल हैंडसमली। परफेक्ट गाइस। सो सी, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ जो दिख रहा है वो तो यही है कि द फॉर्मेट ऑफ द नोट्स इज एग्जैक्टली सेम एज द फॉर्मेट ऑफ आंसर्स, राइट। अभी भी मैं आप लोगों में बहुत लोग देखता हूं जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स में पॉइंट्स लिख रहे होते हैं। इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड, आप उस पैराग्राफ को रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। आपको सिंपल पॉइंट्स यही फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। देर इज अ पॉइंट, देर इज अ डेटा एंड देन देर इज द सोर्स, राइट। एग्जाम्पल है, इस इस फॉर्मेट में आपके नोट्स होने जरूरी हैं। एंड अगर आप लोगों ने केयरफुली नोटिस किया होगा, देर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जो शुभांकर क्वेश्चंस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट थीम्स इन देमसेल्व्स, राइट। वो एक वन आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आया हुआ है। एंड सो हंगर एंड पॉवर्टी वुड बी अ थीम जिसमें आप लाइक आपने अच्छे खासा अपना इलेबोरेट नोट्स बना लिए एंड लाइक शुभांकर वो सेइंग कि डिफरेंट चीजें जो है मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस में वो सेम चीज आप रिपीट कर करके अपना आंसर फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो वो एक ब्रॉडर थीम हो गई। बट व्हेन इट केम टू न्यू लिबरल पॉलिसीज या जो गवर्नेंस का जो कीवर्ड आया था, राइट, दैट्स लाइक ऑफ ऑफ सिलेबस टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें आप उस टॉपिक और उस थीम को एक नई तरीके से पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। सीधे आपने वो क्वेश्चन प्रिपेयर किया है और वही अब आपका डोमेन है। उसके आसपास से कुछ आ गया तो आपने आंसर कर दिया, नहीं आया देन इट्स ओके, दैट्स फाइन, राइट। सो सर्टेन थिंग्स, और ये देखो टेस्ट सीरीज में भी यही चीज होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस, आप अगर सब्जेक्ट लेवल की बात करें ना, तो आई वुड से दैट वर्ल्ड हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू ही आप प्रिपेयर करिए। आप कहां प्रिपेयर करने जाएंगे, कौन कौन से वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट्स आप समझने बैठेंगे, ठीक है। पनामा कैनाल क्राइसिस, सुएज कैनाल, वेनेजुएला का सर क्राइसिस। मैंने टेस्ट सीरीज भी, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री लाइक 20% एक वीडियो देख ली थी 2 घंटे की, और उसी के बेसिस पे जो आंसर था लिखा, इट वर्क्स। I do not recommend. Please finish the syllabus as much as you can. Due to the paucity of time, I was not able to complete world history properly. तो वो है, बट आई अग्री सर कि बहुत सारे मैं ये आईआर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई हैव सीन वेरी हाई रेपिटेशन इन टेस्ट सीरीज एंड आईआर के थीम्स, बिकॉज वो थीम्स पे आते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आई एम नॉट सेइंग आएगा, बट अगर इंडिया नेबरहुड पे क्वेश्चन है तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई ना कोई तो अक्रॉस टेस्ट सीरीज मैच हो ही जाता है, वो पॉइंट्स रिमेंबर हो जाते हैं। तो आई अग्री विद दैट पॉइंट कंप्लीटली। यप, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो, हर क्वेश्चन में एक नया टर्म यूज हुआ है और आप उस टर्म पे 5 पेजेस बना रहे हो, ये नहीं है। आपको स्टैंडर्ड चीजें सबसे पहले कवर करना है, ठीक है। सो पॉवर्टी, हंगर, ये सब स्टैंडर्ड थीम्स हैं जिन पे आपकी एक एकेडमिक डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें जो आउट ऑफ द बॉक्स आ गई है वो क्वेश्चन ड्रिवन आपकी पढ़ाई होगी और आपने बात खत्म किया, ठीक है। वही एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है एंड यू होप फॉर द बेस्ट। दैट इज दैट बिकम सॉर्ट ऑफ द आइडिया देयर, ठीक है। गाइस, ऐसे भी अब देखो, आप लोग एक बात समझो,
ऐसे के एज सच यूपीएससी के बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है ना, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से इतना डिफरेंट नहीं होंगे, ठीक है। व्हाट अ हार्वर्ड कंसिडर्स अ गुड ऐसे, यूपीएससी भी उसको अच्छा ऐसे ही बोलेगा, ठीक है। आंसर राइटिंग डिफरेंट हो जाता है। आंसर राइटिंग में यूपीएससी के अपना स्कोरिंग पैटर्न है, और वो अपने तरीके से देख रहे हैं कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कहाँ चाह रहे हैं कि बच्चे किस तरह से अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो नॉर्मल हिस्ट्री मेजर्स का जिस तरह से आंसर हो रहा होगा, यूपीएससी का आंसर वहां डिफर करेगा, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू एसेज, चैट जीपीटी विल स्टिल बी अ लॉट मोर अलाइंड देन योर जीएस पेपर्स। जीएस पेपर्स में थोड़ा सा आ जा रहा है, स्पेशलाइजेशन आ रहा है। हैविंग सेड दैट, अब आप एसेज में भी इतने सिंपल तरीके से आप बातें बातें पूछ रहे होते हो ना, आप सीधे टॉपिक आप कर दोगे, बोलोगे इस पे ऐसे लिख के मुझे दे दो, ठीक है। वो सब चीजें आपको 100 मार्क्स से ज्यादा नहीं, आप नहीं ला पाओगे, ठीक है। दैट इज, it's good, you will come across certain interesting points there, but it's just 100 marks, not beyond that, and the reasons are this, ठीक है। द फैक्ट दैट ऐसे टॉपिक्स आर नॉट इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, ठीक है, वो फिलोसॉफिकल प्रोवोकेशंस है। आपका मैं अगर ऐसे पढ़ रहा हूं ना, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने आपका डायलेक्टिक्स कैसे चला है, आप कैसे आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट लुकिंग टू रीड एन इंफॉर्मेशन, एक एग्जाम्पल से भरा हुआ एक ब्लॉग ऑफ टेक्स्ट, दैट्स नॉट व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज, राइट। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आप कितना डेप्थ में जा रहे हैं, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स कैसे फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। एंड जीपीटी इस तरह से आपको नहीं फ्रेमिंग देगा, ठीक है। इट्स, वो सिंपली आपको मतलब एक एक स्टैंडर्ड मैकेनिकल रोबोट ने एक लिख के दे दिया है, उस तरह का आपको एक ऐसे प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। दैट ऐसे बिकॉज इट्स 15 to 20% बेटर देन व्हाट यू वुड हैव अदरवाइज रिटन, तो आपको इंप्रेसिव लग रहा है, बट दैट्स नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट, ठीक है। यहां हम लोग देखते हैं, ठीक है, एआई राइट्स 1,000 वर्ड्स, एआई राइट्स 1,000 वर्ड्स, स्टूडेंट फील स्मार्ट, ये सब कॉपी किया है, राइट। एंड इट साउंड्स लाइक एआई यार, इट एंड इट थिंक्स लाइक नो वन, राइट। उसमें आपकी पर्सनैलिटी आ ही नहीं रही है, एंड इट्स जस्ट लेवल 2 ऐसे, इट्स नॉट 125 130, उस लेवल का नहीं है वो, राइट। अब देखो, ट्रूथ नोज नो कलर, इट्स नॉट मेरली आस्किंग अबाउट द नेचर ऑफ ट्रूथ, इट्स आस्किंग यू टू एक्सप्लोर वेरियस टेंशंस, ठीक है। ट्रूथ नोज नो कलर, राइट। कब होता है भाई ट्रूथ का कलर, कब नहीं होता है, ठीक है। जब होता है तो क्या एक्सेप्शंस हैं, राइट। और आपके फिर आर्ग्यूमेंट्स और थीसिस कितने ज्यादा पावरफुल हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। इसका अब आपको मैं मास्टर कोट बताता हूं, मास्टर प्रॉम्प्ट, राइट। डू नॉट राइट द essay, do not give me an outline. I am going to write this essay. Before I begin, what is the single most dangerous misreading of this topic that would produce a mediocre essay? ये सब philosophical essays है, ठीक है। चैट जीपीटी को आप सबसे पहले ये मत पूछो कि मुझे आप कुछ दे दो, ठीक है। आप उससे ये बोलो इस कोड को समझने में मेजॉरिटी लोग गलती क्या करेंगे और सबसे कॉमन चीज क्या बात करेंगे जो कि इसको मीडियोकर बनाएगा, आप वो बात पूछिए। आप इस लेवल की इंटरेक्शन करिए चैट जीपीटी के साथ, तब आपको समझ आएगा कि आपको अपना ऐसे किस लेवल तक खींच के जाना है, ठीक है। सेकेंड, what tensions is the topic actually asking me to resolve? What would make my thesis genuinely original rather than expected? ठीक है। सो थीसिस वुड बी लाइक, हर पैराग्राफ में अपना आप एक थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस डिस्कस करते हुए चलते हो, दैट्स broadly how we structure the essays, right? So essays may be, this becomes like the framework, and इनका हम लोग, वी आर वे पास द टाइम, इनका भी हम लोग एक बार डेमो करके देखेंगे हाउ वी कैन ऑपरेट एट दैट लेवल। बट इवन फॉर एसेज द प्रिंसिपल इज द सेम। अगर आप बेसिक एग्जाम्पल्स, बेसिक गिव मी एन इंट्रोडक्शन, ये रहा टॉपिक, मुझे 4 इंट्रोडक्शन 4 कंक्लूजन आप दे दीजिए, आई विल फिगर आउट व्हाट्स द बेस्ट, दैट बिकम्स लाइक अ वेरी सब ऑप्टिमल, दैट इज नॉट क्रिएटिंग अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर यू, ठीक है। आपके पास वो, ठीक है, आपका एक मेंटल ब्लॉक होगा, आप खुद नहीं सोच पा रहे हो एंड आपका हाथ इतना सेट नहीं है, तो इट गिव्स यू अ स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। बट दैट्स नॉट द आइडियल वे ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी, एंड that is not where you are pushing the boundaries of your essay writing as well as chat gpt. That is the main point here. Trust me on this,
ऑल टॉप रैंकर्स जिनके 120 प्लस 130 आ रहे हैं, वो इतना डीप जा रहे हैं एसेज में, ठीक है। वो ऊपर ऊपर से फटाफट से सारे टॉपिक्स, उन्होंने सारे जितने भी क्वेश्चंस आए थे सब कुछ चैट जीपीटी में डाला, 15 मिनट के अंदर एक 100 पेज की पीडीएफ आ गई, उसको ही पढ़ रहे हैं। नहीं, उस तरह से नहीं कर रहे हैं, राइट। दे आर इटरेटिंग ओवर द होल थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस फ्रेमवर्क। जो वो थीसिस पहले ओरिजिनली ला रहे हैं उसको भी वो चैट जीपीटी से कंफर्म कर रहे हैं कि ठीक है भाई, मैं ये चीज सोच रहा हूं नाउ, ट्राई टू कॉन्ट्रोडिक्ट मी, एक्ट एज अ कॉन्ट्रेरियन, टेल मी इफ माई आर्ग्यूमेंट इज राइट, इफ माई आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग। इस तरह की बातें चैट जीपीटी से हो रही हैं, तब जाके ऐसे का लाइक आपका एक हार्ड हिटिंग ऐसे बन के निकल रहा है।